Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. And welcome to the CX show on AI agents and autonomous businesses, the next disruption. It's great to have you with us live on the YouTube today. First of all, I would like to put some introduction here. Over the past few years, AI has moved from simply answering questions to actually getting things done. These new AI agents can reply to the customers, move information between the systems, help prepare the reports, and support teams in their daily work. In many ways, they are starting to act like digital co-workers inside our businesses. Today, we are going to talk about what that really means for the leaders. Where are agents already useful? How will they change the way we run companies? And what must we think about in terms of skills, jobs, and responsibilities as we give more tasks to autonomous systems? To explore this, we have a fantastic team of CEOs and senior executives who are working with these technologies in real organizations. I'll be asking them to share their success stories, starting from their introduction. So over to you, sir. I just wanted to make a request. There is a lot of noise, probably from one of our panel speakers. Yeah, that's okay now. That's okay now. So thank you again, जी. आप लोग अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं. So start from जमील साहब. Over to you. प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए. Assalamu alaikum ji. Myself Jamilur Rahman. I'm working presently as Senior General Manager IT in Sui Southern Gas Company, and basically a gas utility and surveying Sindh and Balochistan, having more than 3.4 million customers. So the whole IT department, including its disasters and backup management, plus smooth operations of IT. So I look after all those operations, in fact. Thank you, जी. हैदर साहब. Hello, Assalamualaikum. My name is Haider Ali Mohsen, and I am acting as CEO of Technaptics, which is basically an AI first solutions company. We provide AI to businesses and their processes. I am myself a graduate of FAST University, so my interest in data and AI has been generated from my university time, and now I'm presenting it as a platform at Technaptics to empower businesses for AI powered solutions. Fansa, maybe your mic is mute. Sorry, Munir Hussain Shahu Saab. Over to you, ji. Thank you, Irfan Sab. Ji, Munir Hussain Shahu. I am with 20 plus years of experience. I am managing a software services organization, Technology Solutions, as a CEO. We work in the health tech and fintech verticals, health tech in Middle East and fintech and banking solutions in Pakistan. And I have more than, as I mentioned, 20 plus years of experience. I am a graduate from Karachi University and did masters from FAST. So we are also doing some AI innovations work with the diversified clients across the globe. So it would be good to add value here in the session. Thank you. Thank you very much. Sohail Sarwar Saab. My name is Sohail Sarwar. We work at Caprix Consulting at the intersection of strategy with the AI. So we call it digital business transformation. And that's where my postgrad from University of Portsmouth in England. We started Caprix back in 2018, and we are one of the fifth best system integrator in United Kingdom in the RevOps space for non-profits. However, we serve, of course, commercial organizations as well. I'm happy to share my learning around how we are utilizing AI in-house and, of course, helping our clients to adapt this. I would call future is now. It's no futuristic technology. So how tools, strategy, and governance are pivoting together, and we are making a positive difference across different industries. थैंक यू वेरी मच. लास्ट बट नॉट द लीस्ट माई सर जी. मैं अपना इंट्रोडक्शन जो शुरू में कराना चाहिए था प्रॉब्लली मिस कर दिया हूँ, लेकिन
Mohammad Irfan, I'm working with BISP for last almost 5 years. Or I'm a graduate of Hamdard University, then Beria University. I have few publications nationally and internationally. Cybersecurity is my forte. Specifically, जो LLMs, जो नए मॉडल्स आ गए हैं AI के हवाले से, इसमें साइबर सिक्योरिटी क्या रोल प्ले कर सकती है, इसके ऊपर हम कुछ काम कर रहे हैं बिस्प के अंदर भी, और हम अपने बेनिफिशरीज को कैसे मज़ीद अच्छे तरीके से सर्विस दे सकते हैं यूजिंग दी AI, इसके ऊपर हमारे पास कुछ काम हो रहा है. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक फ्रॉम द पैनल, आप में से जो भी इसको आंसर करना चाहेगा या सब अपने रिव्यूज देना चाहें बारी बारी, व्हाट एग्जैक्टली आर AI एजेंट्स इन योर ओपिनियन and how they are different from the traditional automation or chatbots. By automation, I mean most of you have been familiar or might be using the robotic process automation, which is, you can say, a part of sub branch of this thing. So over to you, anyone. So following up with the LIFO method, I was last in the introduction and first in answering the question. So first of all, हमारे businesses को या even subject matter experts को ये clarity होना जरूरी है कि identification of how agents are different from the normal chatbots they use. कि chat GPT जिसने आप message किया और आपने वापस उससे response ले लिया, उनसे किस तरह से different हैं agents. So the biggest differentiation, of course, is that आपको सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बल्कि आपका डिजिटल एम्प्लॉय जो है वो बेसिकली एक्शन ले सकता है. इट कैन एक्चुअली डू द टास्क, इट कैन मिमिक ह्यूमन एक्शन. चले जाएं तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA जब मार्केट में आया था तो पीपल वर लाइक ब्लोन अवे, इट्स मैजिक. बट नाउ it's like आप अपना क्लाउड कोवर्क खोलें and ask it to do anything and everything for you. It will literally mimic your human action. इसी तरह Google AI Studio को आप ओपन करें, मैं टूल्स में अभी नहीं जाऊंगा, but just identifying कि now like technologies like OpenClaw, Claude Cowork, and even operator function within ChatGPT has enabled us कि हमारा जो एजेंट है, जो हमारा वॉइस बॉट है, वॉइस के थ्रू भी इवन कॉल्स ले सकता है. यानी आप जस्ट इमेजिन के रिसेप्शनिस्ट, AI रिसेप्शनिस्ट, which can take the call, which can book the appointments, which can write the code, which can design the presentation, which can make the website. So जो ह्यूमन कर सकते हैं वो अब बॉट्स कर सकते हैं, और उसमें काफी जो इस वक्त एवोल्यूशन आ चुकी है. आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग for the businesses. The only thing is to realize the capabilities, identify the use case, and then implement, and of course understanding the risk as well. So I call it कि इस वक्त AI की emergency है and everybody need to be in ICU. I stands for identifying the insights and C stands for कि capabilities क्या हैं different agents की, और फिर यूज केस आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं. फिर ऑफ कोर्स आपको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट आर द रिस्क्स टू यूज इट एंड आई इन द इम्प्लीमेंटेशन. सो दैट्स माय रिस्पांस. Oh, that's very good. G. Mohsin, I think you would like to add something to it. Just to add to Suez bhai's point that AI agents जो हैं basically traditional automation is rule based, right? It's from X to Y. These are the rules you need to follow. Or AI agents are more analytical. They can think and then they can act. They have a whole set of tools that they themselves analyze and see कि कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है. Do I need to use this tool or do I not use? Exactly mimicking a human behavior. That is where the power of AI agents come in, and it's way beyond traditional automation nowadays. Chatbots are simple. Chatbots are both AI based and non-AI based nowadays, but they are basically just answering queries to what basically the word chatbot comes from, chatting with the bot. But traditional AI agent, where agentic AI comes in, it's more of how you can use its behavior to mimic processes, not just some automation from rule-based X to Y. Yes, very true. Jamil sir, over to you.
जी, just to add what my colleague said, if we look at the chat bots, they are more into conversations. Means they are simply rule defined that if this happens, do this. That's all about it. They will keep on responding. But when it comes to the agent or agentic, then they behave like humans. They have some intelligence built upon the machine learning, which we have educated them. They are trained on that, and based upon that training, they can fulfill our requirements. So a bit intelligence is built in that. However, for bots, we can say that they can just whatever they have, they can pick and share with us. But with agentic, they have some intelligence built in them, and they can be cascaded. And with multiple agents, we can even plan in a way that they can do something extraordinary for us. Yes, because in that particular case, what I understand from your conversation, like their adaptiveness actually it start matter, because the more adaptive that agent is, that technology is, the more reasoning it should create. Munir Saab, do you have anything to say on it, or maybe we should move to the next question? Yes, वो Yes, काफी please. they have the, I think काफी the colleagues have elaborated much on the concepts of AI agent. I would just like to add some points, like let's say those are basically the agents is on top of the agentic AI, the concept which generates through those features of machine learning, which includes like artificial neural networks and deep learning. But it has been so easy for each and every developer, and even for businesses themselves. They can use it in their workflows very easily by using different tools which are readily available. And Sohail Saab rightly mentioned that it's a situation of ICU at the moment to implement AI and to know about it. That's all. We can continue to the next questions. Okay, before moving to the next question, I would like to ask Sohail Saab. Sohail Saab, you have mentioned like the risk about the AI adoption as well. So, in your opinion, what is the most critical risk associated with this AI adoption? Because all of you, the if we talk Yeah. about the public sector, we talk about the especially the organizations; those are having the huge amount of data with them, and specifically like their users, which are the employees primarily, they are using that this technology one way or other. So, what is the biggest, you can say, in your opinion, risk associated with the AI adoption? देखिए मैं रिस्क को बेसिकली क्लासिफाई करना चाहूँगा 3 डिफरेंट कैटेगरीज में। एक तो है आपका बेसिकली डेफिनेटली डेटा का रिस्क, कि जहाँ पे यू आर गिविंग एक्सेस टू होल सिस्टम एक्चुअली, चाहे वो अगर आप सीआरएम की एक्सेस देते हैं, ईआरपी एक्सेस देते हैं, आप अपनी वर्क स्पेस प्रोडक्टिविटी एनवायरनमेंट की एक्सेस देते हैं, बिजनेस का रियल टाइम कस्टमर डेटा, फाइनेंशियल डेटा आपके पास मौजूद है। व्हाट इफ दैट टूल इज कंप्रोमाइज्ड एंड दैट डज like breach of data. For example, OpenClaw के केस में क्या हुआ? It is super functional, but why it like मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि that collapsed, but जितनी उसकी adoption हो सकती थी वो नहीं हुई. Why? Because people found it risky. उसके बाद उस रिस्क को कवर कैसे NVIDIA ने अपना स्टैक उसके ऊपर लगाया to mitigate this at risk. एक तो हो गया डेटा का रिस्क. दूसरा जो रिस्क है वो फंक्शनल रिस्क, कि व्हाट इफ जो आपने बेसिकली बॉट अपने एजेंट को इंस्ट्रक्शंस दी थी, वो इंस्ट्रक्शंस क्या है? वो प्रॉम्प्ट है ना. सम टाइम ह्यूमन माइंड जो है वो कहना कुछ और चाहता है, वो कह कुछ और देता है. फॉर एग्जांपल डीकोडिंग है ना, थॉट की डीकोडिंग आपने करके प्रॉम्प्ट दिया, और उस प्रॉम्प्ट को फॉलो करते हुए एजेंट ने एक पर्टिकुलर टास्क किया. जैसे एलएलएम्स के अंदर हेलुसिनेशन होती है, इसी तरह एजेंट की फंक्शनैलिटी के अंदर भी वो टास्क परफॉर्म हो सकता है जो कि हमने उसे नहीं कहा था, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली. तो उसका कवर क्या हुआ कि अब हम अटेंडेड एजेंट्स के साथ काम करते हैं, कि एजेंट इज परफॉर्मिंग टास्क बट ह्यूमन इज सुपरवाइजिंग के साथ साथ वो चीजें चल रही हैं. तीसरा जो है वो बिजनेस रिस्क है,
कि व्हाट इफ, ऑफ कोर्स, जो हम एक बात करते हैं कि अगर रोल्स जो हैं वो सारे के सारे एजेंट्स ने ले लिए, विच इज हैपनिंग राइट नाउ। आप देखें ले ऑफ्स हो रहे हैं, बड़ी कंपनीज लाइक ओरेकल ने 30,000 लोग जो हैं वो एक बात है ले ऑफ किए। So that is where the economy will get impacted adversely, जहां पे फिर लोगों को कह लें कि रीट्रेन करने की पेस स्लो है as compared to the pace of technology is kind of bringing new innovation. So I think organizations who are devising their business strategy, उनको AI के रिस्क की मिटिगेशन स्ट्रेटजी रखनी चाहिए कि वो बिजनेस रिस्क को, फंक्शनल रिस्क को और डेटा के रिस्क को कैसे केटर करेंगे। अगर ह्यूमन प्लस मशीन मिलके काम कर रहे हैं और कोई चीज खराब होती है, लॉस होता है फंक्शनल फाइनेंशियल बिजनेस, तो हु इज रिस्पांसिबल, एआई और ह्यूमन? तो आई थिंक दैट्स वेयर वी नीड टू पुट अ गवर्नेंस स्ट्रक्चर। I fully agree with Sohail Sarwar साहब points. इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूँगा सोहेल साहब, लाइक मे बी आप इससे एग्री करेंगे कि ये तो वो रिस्क हैं जो कि आप बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें हम डेलिबरेटली या एक किस्म का अपना डेटा एक्सपोज कर रहे हैं उस LLM मॉडल के साथ। मैं आपको एक यूज केस देता हूं जिसके ऊपर लाइक आई वुड लाइक पैनल टू डिस्कस कि हमारे ऑफिस में सिंपल वो कहते हैं ना कि ईमेल का जवाब जो AI से जनरेट हुई है उसका जवाब भी AI दे रही है। सिंपल डेटा निकाल के, अपना डेटा निकाल के आप लाइक चैटबॉट्स को पकड़ाते हैं, आई मीन इनको एजेंट्स को पकड़ाते हैं और कहते हैं ओके इस एक्सेल को जरा सीधा कर दो। दैट इज अनदर यूज केस। तो एक्चुअली आप एजेंट उनको इन AI के एजेंट्स को खुद लर्न करा रहे हैं अपने डेटा के साथ। इस रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसकी अडॉप्शन बड़ी स्पीड से, आप रोक नहीं सकते अपने ऑफिस में किसी को कि नहीं तुम ये चैटबॉट यूज, आई मीन ये एजेंट यूज नहीं कर सकते, तुम फॉर एग्जांपल चैट GPT यूज नहीं कर सकते। वो तो डे इन एंड डे आउट ये तो चल रहा है इनके साथ। तो एक ये इससे भी बड़ा थ्रेट है, बजाय मैं इसकी अडॉप्शन करूं, मैं अपने डेटा को उसके ऊपर ट्रेन करूं, वो लीक हो जाए वो तो बात की बात है, लेकिन मैं अपना डेटा से कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करूं और इसको पकड़ा दूं कि चलो इसको जरा सीधा करके मुझे समझाओ कि इसमें से ये कुछ निकालना है। सो दैट इज अनदर एसोसिएटेड रिस्क जो कि रियल टाइम है और इसके ऊपर भी हमारे पास कोई काउंटर मेजर बड़ा मौजूद नहीं है। I truly agree because it's a बहुत important point है. That's why I would like to address that quickly. ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ तो है ही है, ये सबसे बड़ा रिस्क। थिंक अबाउट द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। जी मैं पब्लिक सेक्टर में हूं, इसलिए मैं पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूं। Because in last November we had a chance, alhamdulillah, to partner with Ministry of IT, जहां पे different public sector की ऑर्गेनाइजेशन से लीडर्स मौजूद थे, and we shared our learnings with them कि how we can use AI to implement the AI policy within different sectors to improve the not just workspace productivity but to comply with the risk element as well. इसका सिंपल सा मैं आंसर आपको देना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारी आती है कैपेसिटी बिल्डिंग और इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, जहां पे हम लोगों को अवेयरनेस दें कि हाउ टू एक्चुअली यूज AI एंड ऑन द AI लेयर, क्योंकि अभी सॉवरेनिटी का मसला है। हम इस वक्त जिस मॉडल पे खेल रहे हैं ना, हम अपना डेटा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंटेलिजेंस इंपोर्ट कर रहे हैं। वहां पे सॉवरेन क्लाउड की इस वक्त बहस ऑफ कोर्स हुकूमती हलकों में भी और स्ट्रेटजी लेवल पे भी आ रही है। तो हमें मॉडल जो है ना वो इन हाउस अपने माइक्रो मॉडल्स बिल्ड करने हैं जहां पे हमारा डेटा सिक्योर रहे और लोग बेसिकली उसको फिर उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर जो है ना वो यूटिलाइज करें। और बिल्कुल ये आई थिंक दिस इज वन। हैदर आप तो हैदर आपका लाइक आप माशाल्लाह फास्ट के ग्रेजुएट हैं और मुनीर साहब भी, आप दोनों से एक जॉइंट क्वेश्चन है। ये जो आजकल हमारे लाइक जो नई जनरेशन है जो इन एजेंट्स पे कोडिंग के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, आप लोगों ने लो लेवल पे प्रोग्रामिंग की भी है, हम भी उसी फेज से गुजर के आए हुए हैं। हाउ डू यू बेसिकली you can say it's another type of autonomous business at this point of time. That's how they are actually selling their product now, like AI में। आपका क्या इसमें ओपिनियन है? पहले मैं मुनीर साहब से पूछूंगा कि आपका क्या ओपिनियन है इसके अंदर के इसकी अडॉप्शन एजुकेशन लेवल पे आप क्या समझते हैं कि कितनी यूजफुल हो सकती है और कितनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है? बिकॉज इन माय ओपिनियन
हम ऑलरेडी उनको हाई लेवल लैंग्वेज पे लेके जाते हैं, लाइक वी स्टार्ट विद पाइथन। अभी हम कई दफ़ा सी उनको स्किप करा चुके हैं या पीछे रह गई है वो, और उसके ऑन टॉप, चेरी ऑन द टॉप, हमने उनको एक चैटबॉट एजेंट भी पकड़ा दिया है कि लो जी शाबाश, बाकी का कोड जनरेट कर लो इसके साथ। सो अब इसके ऊपर आपकी क्या राय है जी? जी एग्जैक्टली इरफान साहब, बिल्कुल ये वैलिड आजकल का प्रॉब्लम है। जैसे हमने तो जब यानी बैक इन 2004 इस दौरान जब ग्रेजुएशन किया, तो ये तो सारे बिल्कुल हम खुद से ही हर लैंग्वेज वगैरह उस वक्त सारा इन्हिसार यही था कि खुद ही आपको कोड करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इंडस्ट्री एडवांस होती गई, और अब ये हालत है कि ये सारे एजेंटिक एआई के टूल्स भी आ गए हैं ना, जो खुद आप उनको प्रॉम्प्ट्स दें और इवन पूरा पूरा वो सॉफ्टवेयर कोड जनरेट कर रहे हैं। तो एक तरह से जैसे इसके दोनों प्रॉज एंड कॉन्स हैं। मतलब इसका कॉन्स तो ये है, जो इसकी जो एक्चुअल जो डेवलपर की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो इतनी ज़्यादा उसमें निखार नहीं रहेगा। यानी वो अपने आप को कैसे अप स्किल करेंगे डेवलपर्स, ये बहुत बड़ा रिस्क है इन टर्म्स ऑफ वर्कफोर्स मैनेजमेंट एज वेल। यानी कि इतने ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं और एक तरफ हमारे पास एजेंट्स हैं। अच्छा, अब बिजनेस के तौर पे देखें, अगर इसको हम जैसे हम अपना सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं, तो हमारे लिए ये हम इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि आगे हमारे लिए रिस्क है कि इसको बिजनेसेस के पास हिट आ रही है कस्टमर्स से, कि वो लोग भी, क्योंकि इतने ज़्यादा, जैसे मैंने लास्ट भी कहा कि इजी टू यूज़ इंटरफेसेस हो गए, यानी एजेंट्स डिप्लॉय करना, इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। इवन आहिस्ता आहिस्ता जो नॉन आईटी के लोग हैं वो भी इन चीज़ों को समझ रहे हैं, उस लेवल पे पहुंच रहे हैं, और आगे तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोजीशन है। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि हम एजेंट्स डिप्लॉय करें, बजाय इसके कि कोई हम फुल टाइम इक्विवेलेंट्स हायर करें। आफ्टर यानी ग्रेजुअली वी कैन रिप्लेस दोज विद द एजेंट्स। लेकिन साथ साथ एक रिस्क ये है कि ये जो सारी वर्कफोर्स और ये सब चीज़ें, इन लोग को टूल्स आना भी ज़रूरी है। देखें, अगर अभी का प्रॉब्लम ये है कि हमें जल्द से जल्द कोई डिप्लॉयमेंट्स करनी, हमें प्रोजेक्ट्स जल्दी प्रोडक्शन में लेके आने, तो इसके लिए यानी हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरह ट्रेन कर रहे हैं कि इनकी एनालिटिकल स्किल्स भी ना ख़राब हो, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा कंट्रोल्ड यूजेज भी रहे इन टूल्स का, जिसके थ्रू हम यानी दोनों चीज़ें अचीव कर लें। ये इस तरह का कुछ हमारी आपके आंसर से ना मैं हैदर के लिए क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, शायद थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा हैदर को आंसर करना इसके लिए। कि हैदर देखें, ये बिल्कुल सही बात है कि लाइक इसकी अडॉप्शन अभी उस पर लिमिट नहीं है इतनी ज्यादा ना, लाइक स्टूडेंट्स के लिए। मैं ये समझ रहा हूँ, लाइक मेरा ओपिनियन, आई माइट बी रॉन्ग, कि जो कोड जनरेट किया जा रहा है, इवन स्टूडेंट्स भी या इवन प्रोफेशनल्स भी, क्योंकि बहुत सारे ऑटोनोमस बिजनेस हैं जो इस पर डिपेंड कर रहे हैं ना, मतलब चीज़ें ग्रो कर रही हैं, लोग अपनी ईज के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। आप जो बेसिकली कोड जनरेट कर रहे हैं, इससे आने वाले वक्त में एटलीस्ट वो स्टूडेंट तो नहीं समझ सकेगा, वो डेवलपर भी नहीं समझ सकेगा कि कोड जनरेट क्या हुआ है, बिकॉज उसका इसमें जीरो इंटरेस्ट रहा है। जिस दौर से हम गुजर के आए हैं, वहां तो हमें ये भी पता होता था कि लाइन नंबर 557 पे करेक्शन करनी है तो रंग चेंज हो जाएगा। अभी इंशाल्लाह अगर रंग चेंज करना पड़ गया तो उसने कहना है सबर कर जाओ, मैं एआई बॉट से, इससे चैट बॉट से पूछ के बताता हूँ कि रंग कैसे चेंज करना है इसका। तो उस केस में डोंट यू थिंक आने वाले वक्त में इस एआई कोड को सीधा करने के लिए भी एक और एआई चाहिए होगी कि अब इसकी करेक्शन करनी है, और स्टूडेंट्स का इसके ऊपर क्या, या नई जनरेशन पे इस पे क्या असर आने वाला है? नहीं, डेफिनेटली। जब मैं आपको बताता हूँ, मैं उस दौर का हूँ जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था, उस वक्त नया नया चैट जीपीटी आया था। तो इट वाज, आई गेस इट वाज माय फाइनल सेमेस्टर व्हेन चैट जीपीटी इवेंचुअली केम इन, एंड पीपल वर, सारे बच्चे तो कहते यार हमारे असाइनमेंट्स तो हो गए, सब हो गया। they started relying on that AI tool even when they were almost ready for the market, right? तो adoption started then. ना मेरे ख्याल में इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस का बड़ा हाथ है। आप इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो एआई है या चैट जीपीटी हो गया या एनी एलएलएम मॉडल है, इसको यूजेज को किस तरीके से प्रमोट करते हैं? डू यू टेल योर स्टूडेंट्स टू हेविली रिलाई ऑन इट, या यू मॉनिटर हाउ दे यूज इट? आपने कितनी इसके अंदर नए स्किल्स डेवलप होने हैं। एक्चुअली तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी वी लेट डेवलपर्स यूज दीज टूल्स, दीज एआई का जो भी कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड देन वी एनालाइज कि इससे क्वालिटी कितनी बेटर हो रही है।
जहाँ पे एआई लूज कर रहा है वहाँ इनकी क्वालिटी कहाँ अश्योर होनी है। इंस्टीट्यूट्स का काम ये है, जब से फास्ट एक इंस्टीट्यूट है, जब हमको ग्रेजुएट खाते हमको बेसिक लेवल से लेके चलाते थे, सी सीखनी है, C++ सीखनी है, C# सीखनी है, फिर जाके आपको पाइथन मिलेगी, इससे पहले तो आप पूछे नहीं। तो उससे उससे क्या हुआ कि हमारे कोर कॉन्सेप्ट डेवलप थे। जब एआई कोई गलती करता है, एआई करता है गलती, इट विल हेलुसिनेट, बहुत ज्यादा। कुछ ना कुछ तो होगा। बट Yes. हमारे पास जो डेवलपर्स हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ कि उनको समझ में आता है कि अच्छा दिस इज वेयर इट द एरर इज एंड दिस इज वेयर आई नीड फॉर इट टू सॉल्व इट। वो सॉल्व भी उसी से कराते हैं। वो इतना लेजी हो चुके हैं कि वो अब कहते हैं कि नहीं यार सॉल्व भी तू ही करके दे, बट दे नो कि उसको गड़बड़ क्या है और क्या सही करना है और क्या नहीं करना है। तो adoption of how to use these tools is That more is important another than important task जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसकी अडॉप्शन, उनको ट्रेन करके अडॉप्ट करवाना, ये अलग बात है। जमील साहब, आपके एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, बिकॉज रिप्रेजेंटिंग लाइक सुई सदरन, आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा ERP का सेटअप चलता है, आपके CRMs हैं, मतलब आप एक बहुत ह्यूज सिस्टम चला रहे हैं। So how do you integrate AI agents into your existing business if you have integrated that? या आपकी कोई रोड मैप है इसके अंदर, कोई आपका प्लान है कि आप क्या इससे अचीव करना चाहते हैं? अच्छा, ये जो है ना बड़ा ही एक क्रिटिकल एक ये समझें कि टॉपिक है जिसमें हम बात करते हैं कि हम अपने सिस्टम्स को इंटीग्रेट करें एआई के साथ या एजेंटिक के साथ। जैसे कि अभी काफ़ी डिटेल में बात हुई, सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर हमने बात की, मगर व्हेन इट कम्स टू द इंटीग्रेशन, अगर हम देखते हैं कि एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई या एजेंटिक के बेस पे, जिसमें आपने उसको ऑटोनोमस डिसीजंस लेने के लिए भी किया है कि एआई ऑटोनोमी के साथ आप ये काम करें, तो उसमें हमने काफ़ी काम तो किया है, बट प्रैक्टिकली हम प्रोडक्शन में अभी तक उसको लेकर नहीं गए, सिवाय चंद यूज्ड केसेस के जिसमें इम्पैक्ट कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। रीज़न बीइंग कि जब हम एक प्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर बात करेंगे कि हम इस एजेंटिक टूल को जो हमने एजेंट बनाया है या उसको कैस्केड करके मल्टीपल डिसीजंस उसके साथ लेने हैं, तो अगर रिस्क उसमें बहुत ही थोड़ा सा है तो देन इट इज़ गुड टू गो। बट एज अ होल अगर हम कहते हैं कि जी स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड हम इसको थ्रू आउट इसको ऑटोमेट कर देते हैं, तो एज सच बहुत कम यूज्ड केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कोई भी एक एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन ये कहे कि मेरे पास ये एक ऐसा यूज्ड केस है कि मैं इसको एंड टू एंड प्योरली एजेंटिक के थ्रू डील कर सकूंगा। क्योंकि अगर हम SSGC को रेफर करते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ न्यू कनेक्शन ये एक प्रोसेस है, वो टीम अपना काम करेगी, सर्वे होगा, फिर दूसरे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड होगा, फिजिबिलिटी बनेगी, फिजिबिलिटी बन के उसका एक बजटिंग होगी, बजट अप्रूव होगा तो वो वापस एक दूसरे डिपार्टमेंट के पास आएगा जिसने वो लाइन प्रोविजनिंग वगैरह देख के उसके ऊपर एक नया कनेक्शन उन्होंने इंस्टॉल करना है। अभी इंस्टॉलेशन से पहले तक के फेज को तो पूरा आप ऑटोमेट कर सकते हैं थ्रू एजेंट्स, और हमने इनफैक्ट वो भी अभी नहीं किया। व्हाट वी हैव डन इज दैट टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दोज एजेंटिक AI processes, first we have to automate that, क्योंकि digitization and digitalization that comes first. If you are digitized and digitalized, then it's quite easier for you to implement that AI factor in that, be that an Gen AI or agentic or whatever. So what we have done is that we have explored some used cases, naming a few like meter image हमारा जो होता है that is printed on the bills. तो उसके ऊपर हम अगर एजेंट अप्लाई कर रहे हैं, which we have done, though it's not in production as a whole across the board, but काफी बड़े मेजर फ्रैक्शन के ऊपर we have implemented that. That is quite simpler, carrying much lesser risks, because it's better to print proper meter image rather than printing anything else. So we see a lot of things that at times we can see a wall is printed there, a pipe picture, road, or a wall. So through those agents we can streamline that process. But as a whole, for an organization like SSGC, we can look into the customer support fraction that is outsourced, but we have implemented robocall function in that robocall system.
that is automated plus a bit light flavor of AI is also in that. So अगर हम SSGC या इस टाइप की किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें इन तमाम रिस्क को देख के हमें काम करना पड़ेगा कि what impact that carries if God forbids anything goes wrong. और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी डिसीजन ओनर्स हैं उन ओनर्स की फुल कंसेंट उसके ऊपर हो और ह्यूमन इन द लूप को रखते हुए वी कैन ब्रिंग देम एज अ डिसीजन ओनर कि इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग देन दे आर देयर टू लुक एट इट. तो अगर हम ह्यूमन इन द लूप को एक सुपरवाइजर मोड के ऊपर रखते हैं दैट विल बी मच इजियर फॉर the means earlier adoption of that AI agents. Otherwise, what will happen is that AI agents will keep on doing their stuff, they will keep on learning, and they will keep on taking their own decisions. That is going to bring a disruption in the system, because maybe वो कोई ऐसी चीज अपने तरफ से मतलब डिसाइड करना शुरू कर दे कि जिसका इम्पैक्ट हमारे ओवरऑल ऑपरेशन पे, और अगर ऑपरेशन पे नहीं है अपॉन द रेपुटेशन कोई ऐसी हो जाए. अगर हम पास्ट में देखें माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर ने दे लॉन्च द फर्स्ट जेन एआई टूल माइक्रोसॉफ्ट टी, और उसमें ये हुआ कि ट्रम्प की इलेक्शन की कैंपेन थी. ट्रम्प केप्ट ऑन सेइंग कि जी आई विल ब्रिंग अ वॉल एट मेक्सिको बॉर्डर एंड मेक्सिको इज गोइंग टू पे फॉर दैट. तो उस पॉलिटिकल कैंपेन में जो माइक्रोसॉफ्ट टी ने उसको लर्न किया विद इन 23 आवर्स कि कोई भी पूछता था कि जी व्हाट इज हैपनिंग इन द यूएस इलेक्शंस एंड व्हाट्स रॉन्ग विद मेक्सिको एंड यूएसए, तो वो माइक्रोसॉफ्ट टी बड़े ही आराम से जवाब देता था कि जी अमेरिका इज गोइंग टू बिल्ड अ वॉल एट मेक्सिको बॉर्डर एंड मेक्सिको इज गोइंग टू पे फॉर दैट. तो वो विद इन 24 आवर्स वो टूल इन्हें बंद करना पड़ा. दैट वाज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ फेलियर, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही ऐसा टूल के जिसके लिए ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ग्लोब वाज एक्साइटेड कि जी कोई ऐसी चीज आने वाली है जो खुद डिसीजंस लेगी, जिसके अंदर खुद लर्निंग होगी, और हमारे जो भी डिसीजंस हम करेंगे, जो भी क्वेश्चंस करेंगे, बेस्ड अपॉन दैट इट इज गोइंग टू बिल्ड अ सिस्टम व्हिच कैन रिस्पॉन्ड ऑन इट्स ओन. तो उसका हुआ ये तो मैं आपकी इस बात पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो अभी नए एजेंट्स है ना, लाइक फॉर एग्जांपल हमने शुरू में भी बात की थी, हैदर ने इसको हाईलाइट किया था कि एडॉप्टिवनेस जो है, रीजनिंग जो है, वो बेसिकली अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है एज कम्पेयर टू दैट फर्स्ट मॉडल. और उसमें आई वुड लाइक टू लाइक मूव टू सोहेल सरवर साहब के. सोहेल साहब, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बनाते हैं, मुनीर साहब आप लोग भी इस पे काम कर रहे हैं, कि ऑटोनमस बिजनेसेस ऐसे कितने हैं, नंबर वन, और जो इससे लाइक इस्तेफादा कर सकते हैं, और दूसरा ये कि क्या उन बिजनेसेस के लिए हम जो एआई एजेंट्स बनाते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, अगर कोई एआई एजेंट्स उनकी बेस पे, उनकी अकाउंटेबिलिटी का क्या मैकेनिज्म हो सकता है. बिकॉज फॉर एग्जांपल जैसे अभी जमील साहब ने मेंशन किया कि अगर हम फुली ऑटोमेटेड सिस्टम को पकड़ा देते हैं कोई चीज़, लाइक इसको एआई एजेंट्स को कि जी नाउ मेक द डिसीजन एट योर ओन, इवन दो वो उतने अडॉप्टिव नहीं है या अभी उनका लर्निंग का उतना ज़्यादा नहीं है विद लिमिटेड इन्फॉर्मेशन विच दे हैव विद देम. सो उस केस में कोई इनका हमारे पास मैकेनिज्म है या अकाउंटेबिलिटी एज अ बिजनेस, मैं अगर उसकी अडॉप्शन अकाउंटेबिलिटी का क्या मैकेनिज्म आपके पास होगा, और कौन सा बिजनेस किस तरह से इससे इफेक्ट हो सकता है या उससे इस्तेफादा कर सकता है. पहले तो ऑटोनमस बिजनेस की बात करूंगा. डेफिनेटली हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक डिजिटल मैच्योरिटी है, और उसके अंदर जो लोग काम करने वाले हैं, ऑफ कोर्स उनका अपना एक माइंड सेट है और उनका स्किल सेट है, और उनकी एग्जिस्टिंग डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स जो ऑलरेडी उन्होंने सिस्टम्स में की हुई हैं, एंड हाउ मच रिस्क टेकिंग दे आर, डिपेंडिंग अपॉन दैट. वो सारी कह लें कि हम कहते हैं कि जी CMMI लेवल 3 या 4 पे बैठे हैं तो 5 पे कैसे पहुंचेंगे. सो ऑटोनमस की डेफिनेशन हर क्लाइंट के लिए, हर बिजनेस के लिए डिफरेंट हो सकती है. जैसे जमील साहब ने बात की कि कुछ ऐसे यूज केसेस हैं जिनको पिकअप करके आप फॉर एग्जांपल उनको इम्प्लीमेंट करें. रेस्ट यू नीड टू कीप ह्यूमन प्लस मशीन. अब अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करें तो हमें सबसे पहले स्टेक होल्डर मैपिंग समझनी होगी कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट.
हमें व्हाट वी कॉल, वो प्रोग्राम मैनेजमेंट में हम कहते हैं कि रेसी मैट्रिक्स, कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज अकाउंटेबल, हु नीड टू बी कंसल्टेड एंड हु नीड टू बी इन्फॉर्म्ड। अगर बिजनेस फंक्शंस के ऑपरेशंस में हम अपनी स्टेक होल्डर मैपिंग को सही कर लें तो अकाउंटेबिलिटी, वो कह लें सेग्रीगेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। और उसको कैसे मेजर कर सकते हैं? अगर बॉट काम करता है तो उसका भी एक्टिविटी लॉग बनता है, और अगर ह्यूमन काम करता है तो उसका भी एक्टिविटी लॉग बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर SSGCL, SAP, S/4HANA या Oracle, whatever system they are using, अब अगर उसका न्यू कनेक्शन के लिए KYC करना है तो वो पहले डिपार्टमेंट्स के थ्रू फ्लो होता था ना। अब ये है कि थिंग इज कि कहाँ पे वो रेपिटेटिव एंड हाई वॉल्यूम टास्क जिनकी इनपुट जो है वो स्टैंडर्डाइज है, फॉर एग्जांपल KYC, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर। अब बॉर्ड जो है वो फोर्स, अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है तो वो पहला ड्राफ्ट एटलीस्ट बना के आपको प्रेजेंट कर देगा। यानी बॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द डेटा हैज बीन रिक्वायर्ड। नाउ हु इज अकाउंटेबल? Human who is sitting on the supervision of that board is accountable to deliver the right KYC. Who need to be consulted? वो SME उस particular sector का, for example एक industrial connection करना है, उस industrial connection के लिए particular assessment, inspection और approval चाहिए for example, तो उस industrial sector का SME need to be consulted. Who need to be informed? ऊपर जो आपका फॉर एग्जांपल जनरल मैनेजर या वर्टिकल मैनेजर जो उस पूरे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को, SBU को रन कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहा है, तो दे नीड टू बी इन्फॉर्म्ड। तो यहाँ पे बॉट और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कह लें कि रीथिंक करना पड़ेगा। व्हाट वी कॉल फंडामेंटल रीथिंकिंग इन द बिजनेस प्रोसेसेस इटसेल्फ। उसके ऊपर फिर आपकी गवर्नेंस लेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर उसको बैक कर सकते हैं थ्रू द सिस्टम्स, एंटरप्राइज सिस्टम्स, कि जहां पे आपकी ट्रांसपेरेंटली जो है वो लॉग बन रही हो। इसमें भी अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप पहले बात कर रहे थे वो अडॉप्शन का है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अडॉप्शन को इंक्रीज करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप, आई वुड रिकमेंड एनीबॉडी हु इज लिसनिंग टू दिस टॉक, they can right now go and find a basic AI influency program by Anthropic. उसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत मॉडल है, वो कहते हैं 4D, कि आप AI को डेलीगेट कर रहे हैं बेसिकली काम, कि वो आपके लिए काम करें। फिर आप उसको ऑफ कोर्स डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन सेकंड D। फिर उसकी डिसर्नमेंट यानी उसका काम चेक कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कोड के हवाले से बात की कि डिसर्नमेंट तभी हो सकती है कि अगर खुद बंदे को पता हो, एक राइटर को पता ना कि जो AI ने लिखा है वो उसके गोल के अलाइंड है या नहीं। इसी तरह एक इफेक्टिव कोडर को पता है कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन में राइट करवाना चाह रहा था, जो सिंटैक्स में राइट करवाना चाह रहा था अपने IDE के अंदर, ये मेरी स्पेसिफिकेशन को फुलफिल करता है या नहीं। 4th D जो है वो आपका है इंटेलिजेंस, के जहां पे आप अगेन एक डबल सुपरविजन लेयर लगाते हैं कि ह्यूमन प्लस मशीन ने जो मिलके काम किया था ये कितना यूजेबल है। तो आई थिंक ये सारे का सारा जो है ना वो इफेक्टिव AI स्ट्रेटजी के अंदर आप स्ट्रीमलाइन करते हैं कि चेंज मैनेजमेंट कैसे होगी, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, कौन से यूज केस आप उठाएंगे, कौन सी कैपेबिलिटी इस्तेमाल करेंगे। बिकॉज पहले क्या होता था, आप और मैं बात कर रहे हैं ना, उर्दू में बात कर रहे हैं, अंग्रेजी हमारी सेकंड लैंग्वेज है, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज हम दुनिया से बात करते हैं। पहले क्या हो रहा था कि सिस्टम एक दूसरे के साथ एक ही जुबान में बात करते थे, वो थी API, एक दूसरे से API के थ्रू डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं। अब नई जुबानें आ गई हैं, वो नई जुबानें कौन सी हैं? MCP सर्वर, वो है प्लगइन, जहां पे आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि डेलिबरेट डेटा एक्सेस। अब वहां पे सिस्टम्स आपसे पूछ रहे हैं कि जनाब डू आई हैव एक्सेस टू दिस, आप कहते हैं यस। एजेंट के केस में क्या है, वो पूरे का पूरा UI एक्सेस कर लेता है। अब यहाँ पे आपको सुपरविजन की जरूरत है, यहाँ पे आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत है कि वो मॉनिटर करे कि AI जो है वो वही डिलीवरेबल दे रही है जो कि उसको असाइन किया गया था। आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन। Yes. The next thing is can startup build a AI first or AI only business models?
अब क्योंकि हम इस दौर में हैं जहाँ पे नए स्टार्टअप्स आए दिन आ रहे हैं, क्या नई प्रोडक्ट्स की रिलायंस होल सोल ऑन क्या नाम है एआई बिल्ड मॉडल्स पे हो सकती है? अनदर क्वेश्चन टू ये मुनीर साहब जी। मैं इसका, हाँ बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन है रिलेटेड टू द एआई ऑटोमेशन, यानी एआई फर्स्ट businesses to come up with any AI first business model on which startups can actually work. बिल्कुल, ये इसमें देखें, अब जैसे जैसे हम मैच्योर होते जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एआई मॉडल्स, और काफ़ी कंपनीज हैं जो दुनिया भर में बहुत ही अच्छे अच्छे मैच्योर, यानी एक तरह से रेस लगी हुई है एलएलएम मॉडल्स की, खास तौर पे कि कभी जैसे जीपीटी का कोई नया वर्जन आ जाता है, कभी क्लॉड का, एंड ऑल आर इन देयर स्पेसिफिक लाइक एक्सपर्ट एरियाज। कोई किसी पर्टिकुलर डोमेन में अपने मॉडल को ब्रेक थ्रू करता है। तो अब इन सब तमाम की अगर बात करें, तो अब जो बिजनेसेस हैं वो भी इस चीज़ में थिंक अप कर रहे हैं कि हाउ टू ऑटोमेट। अच्छा, अब मैं थोड़ा, यानी पूरे बिजनेसेस को एआई ऑटोमेशन पे लाना अभी मेरे ख्याल से इतना फॉरेन मैच्योरिटी अभी इतनी नहीं आई, लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं, दे आर थिंकिंग फॉर एनी डिफरेंट यूज केसेस। लाइक रिसेंटली वी वर्कड विद एन ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट, वो एक सोलर एनर्जी की कंपनी है। सो दे ऑटोमेटेड their voice, like their call center system, they incoming calls का voice AI agent हमारी टीम ने डेवलप किया, that was integrated with their CRM and knowledge base को उसके अंदर एब्जॉर्ब कराया गया थ्रू LLM, और इन तमाम, यानी इसके थ्रू बेसिकली जो एक नंबर उनको दिया गया था कस्टमर्स को, तो वो उस नंबर पे कॉल करते थे, तो AI एजेंट ये समझता था कि इज इट द एग्जिस्टिंग कस्टमर और लीड है या कोई कंप्लेन है, तो इस तरह की चीज़ें। अच्छा, साथ ही फिर एक और यूज़ केस है रिगार्डिंग आउटगोइंग कॉल्स, यानी रोबो कॉल जनरेट हो रही है बेस्ड ऑन द ईमेल फ्रॉम द क्लाइंट्स, यानी वो ईमेल की पार्सिंग करके पूरा उसको कर रहे हैं। अच्छा, अब जहाँ तक बात है कि तमाम चीज़ें ऑटोमेट करें, तो मैं अभी जैसे रिसेंटली एक यूएस बेस्ड एक स्टार्टअप का सुना कि वहाँ पर सिर्फ 2 ही उसके फाउंडर्स ही हैं, बस 2 ना, दे डोंट हैव एनी एम्प्लॉय, लेकिन उन्होंने अपनी तमाम जो पूरा वर्कफोर्स है, यानी वो पूरी एआई एजेंट्स के तौर पे रखी हुई है, एंड दे हैव डन रियली अ गुड सक्सेस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। मुझे अभी वो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा नाम। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रिसेंटली मेरी नज़र से गुजरा बिल्कुल ऐसा ही कि लिंक्डइन के ऊपर जॉब्स आई हुई थी और जिसमें वो दे वर एक्चुअली आस्किंग फॉर द एजेंट्स ओनली, दे डोंट वांट एक्चुअली ह्यूमंस। सो बट अगेन वो मॉडल्स, वो उनका रिक्वायरमेंट ये थी कि वो जो मॉडल्स हैं वो एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि कॉल सेंटर के लिए ट्रेन हुए हुए हों, या सिंपल एक स्पेसिफिक किस्म की कोडिंग के लिए हों, या वेबसाइट बिल्डिंग के लिए हों, और उसमें वो मेच्योरिटी लेवल्स उनके मांग रहे थे कि जी एटलीस्ट इतना मेच्योरिटी लेवल हो। यस, दिस इज वेरी ट्रू, थिंग्स आर मूविंग टूवर्ड्स दी इंटरनेशनली एआई अडॉप्शन पे जा रही है। पाकिस्तान में शायद अभी उसका जोर कम है, लेकिन चूंकि हम एक एक्सपो मार्केट की तरह बिहेव कर रहे हैं, बिकॉज हम तो सॉफ्टवेयर ज़्यादातर एक्सपोर्ट करके अपना रेवेन्यू अर्न करते हैं, तो उसमें इसकी अडॉप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन विद इन पाकिस्तान भी ज़रूरी है, बिकॉज जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आएगी, अडॉप्शन होगी, उतना लोकल बिजनेस भी इससे इम्प्रूव होगा। और हसन, मैं बिजनेस मॉडल पे कमेंट करना चाहूंगा बिकॉज़ इट्स माय स्पेशलिस्ट एरिया, आई मैनेज टू टीच दिस इन अ बिजनेस स्कूल एज वेल। जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बिजनेस मॉडल की, अगर आप बात करें तो जो कोर वैल्यू प्रोपोजिशन है ना, अगर बिजनेस मॉडल कैनवस एक ब्यूटीफुल मॉडल है बिजनेस मॉडल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बीएमसी, उसका टेम्पलेट गिव्स यू वेरी गुड, आई मीन क्वेश्चंस which every organization actually should answer, is directly under कहने के डिजाइन थिंकिंग फ्रेमवर्क का कोर कंपोनेंट है। उसमें अगर आप 9 कंपोनेंट्स ऑफ बीएमसी को, लेकिन एआई जो है वो फंडामेंटली कहने के बिजनेस मॉडल को चेंज कर चुकी है बेसिकली, कि एंड टू एंड आपकी सबसे पहले ना, कोई भी बिजनेस है उसकी टॉप लाइन अगर सॉर्टेड है, रेवेन्यू जनरेशन अगर सॉर्टेड है, तो एवरीथिंग फ्लोज डाउन, यानी उसकी जो रेवेन्यू जनरेशन के लिए जो कोर वो एबिलिटी बेसिकली प्रोवाइड कर रहे थे या सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, नाउ दोस सर्विसेज आर पावर्ड बाय एआई।
जहां पे वर्कफोर्स के लेवल पे तो एजेंट्स काम कर ही रहे हैं, लेकिन डिलीवरी के लेवल के ऊपर भी काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी वर्क विद कोचेस एंड कंसल्टेंट, एक नीश ये हमारी ये भी है, जिसमें हम बेसिकली वी सिट विद अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड थ्रू द पावर ऑफ एआई वी लिटरली डाउनलोड देयर ब्रेन, व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट दे नो, सो व्हाट दे नो उसको सेल कैसे करना है, ये पूरा बेसिकली बिजनेस मॉडल है, यानी प्रोडक्टाइज कैसे करना है। वहां पे एआई उस सब्जेक्ट एरिया से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछती है, एजेंट जो है वो उस सब्जेक्ट मैटर से इंटरव्यू करता है, डेटा कलेक्शन हो जाती है, उसकी बेस के ऊपर इट क्रिएट्स व्हाट वी कॉल मार्केट मैसेज ब्लूप्रिंट, और उसका पूरा वो डिलीवरी प्रोग्राम और इवन उसकी ऑफर्स कि जी हाउ टू सेल व्हाट यू नो। नाउ इट्स कंप्लीटली एआई पावर्ड कंसल्टिंग प्रोग्राम। पहले कंसल्टेंट्स ऑफ कोर्स अपना नॉलेज ही बेच रहे हैं ना बेसिकली, आप या टाइम बेच रहे हैं, तो ये कन्वेंशनल मॉडल था। अब एआई ने उसको फंडामेंटली आपको रीथिंक करवा दिया, रीडिजाइन करवा दिया with the power of AI, with the power of co-intelligence. Actually, I've written an article exclusively on my LinkedIn which explains end to end आप किस तरह से power of co-intelligence को use करते हुए अपने business को transform कर सकते हैं, कि वो revenue किस तरह से generate करेगा, and of course workspace को कैसे productive करेगा। तो it is here already, not a future thing anymore. थैंक यू सोहेल। आपके इस क्वेश्चन से हैदर मैं लाइक इसको मजीद एलैबोरेट करूंगा और आपसे इस पे मजीद चाहूंगा कि आप इसको रोशनी डालें कि इज देयर अ रिस्क ऑफ ओवर ऑटोमेशन एंड लॉस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल इन द फ्यूचर विद द यूज ऑफ लाइक एआई? ओवर ऑटोमेशन किसको देखते हैं? ओवर ऑटोमेशन हम कह रहे हैं कि जो सारे प्रोसेसेस है हमारे बिजनेस के वो एआई टेक ओवर कर ले, फ्रॉम एंड टू एंड बिजनेस क्या एआई चला रहा होगा। दैट इज नॉट, आई डोंट थिंक दैट्स इवन पॉसिबल एट दिस स्टेज। अभी जो हम चल रहे हैं एआई इन द ह्यूमन इन द लूप का जो कॉन्सेप्ट है, वो अगर हम उसको लेके चले तो आपके पास ऑलवेज यू नीड समवन हु इज मॉनिटरिंग एआई एजेंट्स। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये था, सॉरी मैं रिकॉल कर रहा हूँ, आपका क्वेश्चन क्या था? जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि इज देयर एनी रिस्क ऑफ ओवर ऑटोमेशन एंड द लॉस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल। मैं इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर देता हूँ कि हम सोहेल ने भी एग्जांपल दी, मुनीर साहब ने एग्जांपल दी, हम एक केवाईसी की एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एजेंट आपको कॉल कर रहा है और ये आपका केवाईसी कर रहा है, या इवन आपके डेटा की स्क्रूटनी के लिए कुछ काम हो रहा है और वो एजेंट परफॉर्म कर रहा है। उसके ऊपर भी एक और एजेंट है जो ये कर रहा है, क्योंकि जो इनिशियल वर्किंग आई थी वो इन पैरामीटर्स के ऊपर आई थी। सेकेंड लेयर ये थी कि मैंने इसकी क्लेंजिंग करनी है, क्लेंजिंग करने के लिए एक और एजेंट है जो सुपर एजेंट है उसका, और वो उसको क्लेंस कर रहा है डेटा को। और थर्ड लेयर में उसकी फिल्टरिंग हो रही है, वो भी एक एजेंट कर रहा है कि कलेक्ट हुआ, क्लेंस हुआ और अब फिल्टर होके मेरे पास ये बच गया है। और जो फोर्थ एजेंट है एक्चुअली, जो बेसिकली जिसको हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है टॉक टू योर डेटा, वो आपके डेटा से आपकी यूजेबल रिपोर्ट्स भी निकाल के आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा है। तो इट्स अ लेयर्ड अप्रोच, मतलब मैं इस ऑटोमेशन की बात कर रहा हूँ, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 एंड लेयर 4। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो कोई डिसीजन ले लेता है बेस्ड ऑन दैट, दैट इज द लॉस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल ऑन दैट पार्ट। दैट्स व्हाट आई एम बेसिकली। बट ओवर ऑटोमेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। अगर आप इस पॉइंट इन टाइम में ओवर ऑटोमेशन कर देते हैं, then what happens is कि आपके पास क्या इनपुट आ रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है, कितना क्वालिटी एश्योर्ड है वो, और किस जो आपको आउटपुट जो इंटेंडेड रिजल्ट है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एंड इफ इट्स नॉट देयर, देन वेयर डू यू नीड टू सी कि पीछे की जो 5 लेयरें थी इसके अंदर कौन सी लेयर में जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इज इट द लेयर 1 दैट क्रिएटेड एंड देन इट मूव फॉरवर्ड, उसी लेयर के साथ वो 5वीं लेयर तक पहुंच गई, या ये 4थी लेयर में आके कहीं इसका इशू हुआ। तो जो ऑडिटिंग है, जो उसकी लॉगिंग है कि इसको हमने सही कैसे करना है, एंड इवन इफ यू फिगर आउट, ओके जब मैं समझता हूँ आपने हैदर आई थिंक बहुत चलेगी। अच्छा मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अच्छा ये स्टिल है, जी मेरे ख्याल से शायद हैदर आपकी आवाज चली गई थी, मे बी प्लीज कंटिन्यू जी। हाँ I'm sorry, I was just elaborating we अगर आप missed the last part. Yeah, if you have so many layers,
then even if one layer, अगर आप कहते हैं कि यार ये सही काम नहीं कर रही, we have identified that layer 3 is the problem. How long will it take you to backtrack it to that layer and then reanalyze, reprocess it कि third layer से वापस fifth layer तक कि जो ये पूरा process है मेरे AI agents का, ये सही work कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, किस तरीके से उसको ensure करूँ? And then जो loss of time है या जो loss of effort है, जो आपने eventually उसको for आपके effort बचाने के लिए किया था, वो twice the effort you're putting in just to fix it. And then there is that loss of revenue as well, जो आप effort उसको ठीक करने में लगाएंगे, उतनी देर में आप कितना business lose कर जाएंगे. So it eventually it becomes a problem. Thank you. Jamil Saab, do you have anything to say on it? जी, I just wanted to add one thing that over automation की जो हम बात कर रहे हैं, that may happen and very rare cases has been observed in reinforced learning, where we have directed the agent to do something, and as per his activity he will be rewarded. As just very rightly said that there was an ad on LinkedIn that we need 50 digital agents, not the physical agents. So in that case, the performance of agent will be gauged upon the number of issues resolved or complaint attended or customers entertained. So what will happen is that in that case, if I will ask the agent to shut down, the agent has been trained in a way that the more the cases he will attend, the more reward he is going to earn. So what will happen is that through the reinforced learning, it will be in a denial mode, that it will not be going to shut down its that process at that particular time. So what's happened is that for that over automation avoidance, that nothing goes wrong, what we can do is that keeping human in a loop is a very a legitimate thing. We need a supervised learning model in that case, that there is a point where that supervised learning in that model, human can directly direct that irrespective of the fact, the agent has to go down. So this is how we can control that. Normally what happens is that we keep on using the stuff, we will keep on building the agents will start taking input from the other agent and decide for another activity. That accumulated impact can be harmful for us, which we can in a way translate that is the over automation. So in that case, if we have a supervised learning model or supervised human somewhere who can stop that activity or agent at spot in order to avoid any mishap, like we have observed in some cases that despite of the commands set in the agents, they took their decision on their own, and they were in fact uncontrollable at that time. So Thank you, Jamil Saab. I got an idea on that. Munir Saab, for the last 2-3 minutes, I would like to ask one more thing. What's in your opinion we should invest in what right skills for AI? Or particularly AI adoption in terms of. जी AI adoption असल में देखें ये when we talk about in Pakistan, so like I believe like to invest in some research perspective also, like the students can be trained on the roots, like from having mathematical background and statistical background. So I think it's the need of the time, like we are already late, because I think some LLM should have been come up from Pakistan as well, even though some companies have already come up with their LLM, like Urdu LLM or maybe, but they are not yet really in force, like not much popular. Or maybe really impactful as well. Yes, exactly. It's the impact, the perspective is also there. So in order to come up with the race, like we already have these AI automation tools and agents and LLMs. So it's like very
diversified type of knowledge base already available. So at least to start with, we can train different, like it's not only for the IT and computer science graduates, like these should be part of other curriculums as well. Like I was speaking in Muhammad Ali Jinnah University in a panel discussion a couple of months ago. So there were also the questions. They were also thinking to have some AI courses for business management graduates. सो आई थिंक हम अगर आईटी और कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है. सो लाइक 2 areas. One is to capture the roots from mathematics and statistics and come up with some really good innovation which can be used by all the world. And the next step is to have some knowledge and education available for the consumer sides, like we are consuming already those already in the markets, like those models and engines, and facilitating businesses on top of that. Sohail, a quick one from your side. Just last 2 minutes. कौन से आपके ख्याल में कौन से बिजनेसेस हैं जो कि इमीडिएटली AI adoption की तरफ जा सकते हैं? Quick, like in 30 seconds. I think there is not a single business which should ignore AI, because if you are not going to do it, your competitor is going to do anyway. तो ये वही बात है, इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, और इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग इज द कोर. जैसे इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज लोगों ने सीखी टू एक्सेस द ग्लोबल मार्केट. अगर आपको compete करना है मार्केट के साथ, तो AI फ्लुएंसी एंड इन्फ्लुएंसी बोथ आर फर्ज. ये ऑप्शनल नहीं है, ये थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटी बन चुकी है. और हमें सिर्फ टेक्निकल लेवल पे नहीं सीखना, एक्चुअली इंडस्ट्री और फंक्शनल लेवल पे, कि पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल जी इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए या सर्विस सेक्टर के लिए, या एक बात है जितनी भी 25-30 इंडस्ट्रीज आप निकाल लें, हर इंडस्ट्री के लिए AI का मतलब डिफरेंट होगा. और हर किसी को सीखना है कि व्हाट AI मीन्स फॉर माय बिजनेस. 2 तरह की एक्सट्रीम पाई जाती हैं. जस्ट लास्ट कमेंट ये है कि एक तो वो है कि जो प्योरली मशीन लर्निंग एंड सुपरवाइज्ड, दे गो डू टेक्निकल, और एक तरफ पॉपुलेशन वो पाई जाती है जो नैनो बनाना से पिक्चर्स बना रहे हैं. हमें AI फॉर बिजनेस के ऊपर फोकस करना है, व्हिच इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द इकोनॉमी. सो वो रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, फाइनेंशियल प्रोसेसेस, हायर टू रिटायर, डिजाइन टू ऑपरेट, जो बिजनेस के कोर प्रोसेसेस हैं, लीड जनरेशन टू कैश कलेक्शन, जो बिजनेस को ड्राइव करते हैं, उसके लिए AI की कैपेबिलिटी को आम कीजिए, इस पैगाम को फैलाइए. दैट्स द की मैसेज. And Heather, like I want to listen from you as well कि जी ये जो हमारी how can we actually avoid this blind over automation? Just quick, again 30 seconds. What maybe we should identify. Yeah, every business needs to identify कि उनके business के अंदर core value क्या है for AI. Whether it be any order to cash flow है, या उनको किसी analysis की problem है, उनको core problem किधर आ रही है, and then start with that. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें थ्रू AI, एंड इफ दैट वर्क्स इट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स कि आपने कितनी अडॉप्शन करनी है ऑफ AI इन योर कंपनी, एंड देन यू कैन टेक दैट एज अ रेफरेंस पॉइंट एंड देन स्टार्ट एडिंग इट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बिजनेसेस एज वेल. Thank you very much, panel. So I would like to conclude it as we close today's session on AI agents and autonomous business. A few points are clear. Number 1, AI agents are already moving from theory to the practice. That's what we all agree upon. And they're acting as a digital co-workers that can run real workflows, not just the answering questions. That's something we agree upon. We have heard how they can unlock new efficiency and revenues, but only when paired with the strong governance, as mentioned by the Sohail Service, human oversight, and the right skills in our team. And the overall message is start small, be intentional, and scale what works. And don't automate blindly. That's what my 2 cents are. Thank you very much to our panelists for their insights, and to all of you who are joining and engaging with us. Let's keep this conversation open and alive in your own organizations, and we look forward to seeing you in the next session. Thank you very much, everyone. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you. Love this. Love this.